Assalamu alaikum students, how are you all? Today the topic is human skin color, that is related with the polygenic inheritance. As we have discussed yesterday, that polygenic inheritance or polygenes, it is that type of inheritance in which some of the traits which are controlled by two or more genes are called the polygenic or polygenes. ठीक है, such as human skin color, human height, human intelligence, and we have studied yesterday the wheat color in case of wheat plant, right? Inheritance of polygenic trait is called the polygenic inheritance, and the genes involved in a quantitative inheritance are called the polygenes. So this is the example of quantitative inheritance. As we have discussed yesterday, that what is quantitative, it means that there are continuous variations and we have different types of quantities, and this quantity is changing from one to other and showing the variations. We have discussed yesterday the wheat color, as the wheat color changes from dark red to light red, then light pink, and then finally the last variation was white color. So there are lots and lots of variations in case of wheat color. Today we will study, in case of polygenetic inheritance, we will study the human skin color. In case of humans, there is also an example of quantitative inheritance. Quantitative inheritance means the quantity is increasing. Let's say, for example, there are three genes, that is gene A, gene capital B, and gene capital C. These three genes, when they add, number one gene, that is A gene, is added, then B gene is added, then C gene is added. इन केस ऑफ ह्यूमन स्किन कलर, जब आपके पास कैपिटल ए बी सी ऐड हो जाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि मेलानोसाइट इसमें ऐड होते जा रहे हैं, और उस पर्सन का जिसमें ये तीनों की तीनों जीन्स एट अ टाइम प्रेजेंट हैं, तो उसका स्किन कलर जो है वो बिल्कुल ब्लैक शेड की तरफ, डार्क शेड की तरफ चला जाएगा. ठीक है, तो जितनी ज्यादा आपके पास मिलेनिन पिगमेंट की एडिशन होगी इन केस ऑफ कैपिटल ए बी सी, तो आपके पास उतना ही ज्यादा मिलेनिन की प्रोडक्शन होगी, और मिलेनिन जो है जितना ज्यादा प्रोड्यूस होगा, तो उतनी ज्यादा स्किन कलर जो है वो क्या होगा, डार्क होगा. मिलेनिन इज अ broad term for a group of natural pigments found in most organisms. So the melanin is actually responsible for pigmentation. Melanin is produced through a multi-stage chemical processes known as melanogenesis, where the oxidation of amino acid tyrosine is followed by polymerization. The melanin pigment are produced in a special group of cells called melanocytes. There are three basic types of melanin, that is eumelanin, pheomelanin and neuromelanin. ठीक हो गया, तो ये वो अमाइनो एसिड है टायरोसिन, जो कि क्या करता है, जिसकी ऑक्सीडेशन की वजह से, पोलीमराइजेशन की वजह से मेलानिन की प्रोडक्शन होती है, और जितनी ज्यादा एक ह्यूमन में मेलानिन ज्यादा होगा, उतना ही ज्यादा उसका शेड जो है वो डार्क होगा. जितना ज्यादा मेलानिन कम होगा, उतनी स्किन जो है वो फेयर शेड की तरफ जाएगी. अगर हम कहेंगे स्मॉल ए स्मॉल बी एंड स्मॉल सी, दैट पर्सन डोंट हैव एनी काइंड ऑफ मेलानिन, तो वहां पर क्या है, बिल्कुल जो स्किन है वो फेयर शेड की तरफ जाएगी, राइट? So human skin color, melanin pigment decide the skin color in man. It is determined by three pair of genes, that is six genes. These pair of genes are present on different loci, and each dominant gene is responsible for the formation of fixed amount of melanin pigment. David Port study on this topic.
ठीक है। तो आपके पास ये वो करेक्टर है कि जिसमें आपके पास एक नहीं, एक जीन इन्वॉल्व नहीं है कि एक जीन हो कि उसके ऊपर दो एलील्स अल्टरनेट फॉर्म प्रेजेंट हैं और वही जो है वो रिस्पॉन्सिबल है किसी एक ट्रेट को लाने में। यहाँ पर हमारे पास तीन जीन्स इन्वॉल्व हैं, दैट इज ए, बी एंड सी। तो हम कह सकते हैं कि वी हैव 6 डिफरेंट एलील्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग दी स्किन कलर। ठीक है, एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम वी हैव वेरिएशंस इन केस ऑफ स्किन कलर इन ह्यूमन बींग्स, वी हैव वेरिएशंस। ठीक है, यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा स्टडी कर लें कि ऐसा कपल जिसमें आपके पास सारी की सारी एलील्स जो हैं वो लोअर केस है, दैट इज स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल सी। इफ अ कपल इज मैरिंग के मतलब आपके पास यहाँ पर वेरी डार्क और वेरी लाइट आपके पास पेरेंट्स हैं, पेरेंटल जनरेशन है और क्रॉस हुआ है, इसके जाइगोट में आपके पास मुलेटो प्रोड्यूस होगा, यानी इट वुड नॉट बी कि आपके पास डोमिनेंट कलर प्रोड्यूस होता। यहाँ पर आपके पास ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस की एग्जांपल शो कर रहा है और आपके पास जो पर्सन है वो मुलेटो आएगा, या ऑफस्प्रिंग जो है वो मुलेटो आएगा। ठीक है, so we can say that in case of human skin color, it is a type of a polygenic inheritance, and it is the skin color is determined by the amount of melanin the skin produced. ठीक है, dark skin individual produce more melanin than the light skin individuals. ठीक हो गया, at least 3 genes A, capital B and capital C regulate the amount of melanin produced. Each gene has two forms. The dark skin allele are represented by the capital letters and the light skin are represented by the small letters, that is small a, small b and small c. No allele is completely dominant to the other, and heterozygotes exhibit an intermediate type of phenotype, that is the example of incomplete dominance. ठीक है, capital A, capital B and capital C act as dark skin alleles in the genotype because they add pigment by increasing melanin production. ठीक है, जितना ज्यादा हम कैपिटल्स की तरफ जाएंगे उतनी ज्यादा जो है वो स्किन डार्क शेड्स में आएगी, जितना ज्यादा हम लोअर केस की तरफ जाएंगे तो उतनी ज्यादा लाइटर स्किन आएगी। द जीनोटाइप जिसमें आपके पास कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी आएगा, तो ऐसे ऑफस्प्रिंग को हम कहेंगे कि ये ब्लैक और व्हाइट इनके पेरेंट्स थे और ये ऑफस्प्रिंग मुलेटो हैं, मुलेटो। ठीक है, this is not mentioned in your book, this is mentioned in the federal book, and the checkerboard is not also made in your book. If you want to make a checkerboard, you can take help from this diagram. ठीक है, so in case of parental generation, then there is gamete formation, then is F1 generation, and then will we do the F2 selfing, and then we will draw a checkerboard in which we will show that in case of capital A, capital B, capital C, there is very dark skin color, and over here you can see that small a, small b and small c, that color is very lighter color, that means it is the fairer color. Okay, now in case of your book, it is mentioned that कि आपके पास human skin color is the good example of polygenetic inheritance, and dark skin individual produce more melanin, so at least 3 genes regulate the amount of melanin. 3 genes, ठीक है, जीन ए, जीन बी एंड जीन सी। जीन ए जो है वो क्या करती है कि इट इज इन्वॉल्व इन द परमानेंट सर्वाइवल, मतलब यहाँ जीन ए जो है रिस्पॉन्सिबल है मिलेनोसाइट की सर्वाइवल के लिए, प्रोलिफ्रेशन मतलब डिवीजन के लिए, बार बार उसको डिवाइड एंड रीडिवाइड और नए से नए मिलेनोसाइट्स बनाती है, और माइग्रेशन के लिए। ठीक हो गया, तो इसका मतलब ये है कि कैपिटल ए वाली जीन जिन इंडिविजुअल्स में होगी तो वहां पर मिलेनोसाइट होगा, और इट मींस कि उनका कलर जो है वो डार्क होगा।
जीन बी, अब जीन बी क्या करती है? जीन बी एक एंजाइम प्रोड्यूस करती है, टायरोसिन एंजाइम, जो कि क्या बनाता है? वो मिलेनिन बनाता है। किससे मिलेनिन बनाता है? एक अमाइनो एसिड से, जो कि हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, टायरोसिन। तो वो इंडिविजुअल्स जिनमें कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी एंड कैपिटल सी होगा, तो वहां पर मेलानोसाइट बनेंगे भी, और जीन बी एंजाइम भी प्रोड्यूस करेगी, और मेलानिन जो है वो आपके पास टायरोसिन अमाइनो एसिड की ऑक्सीडेशन से बनेगा भी। ठीक हो गया। फिर हमारे पास जीन सी जो है वो रिस्पॉन्सिबल है कि वो क्या करे कि या तो उस ह्यूमन में फियोमिलेनिन बने और या यू मिलेनिन बने। ये दोनों मिलेनिन की टाइप्स हैं, फ्यूमिलेनिन एंड यू मिलेनिन। जैसे कि मैंने आपको अभी भी बताया था इस स्केच में कि आपके पास देयर आर थ्री बेसिक टाइप्स ऑफ मिलेनिन: यू मिलेनिन, फ्यूमिलेनिन एंड न्यूरोमिलेनिन। सो यू मिलेनिन एंड फ्यूमिलेनिन, इनकी ये जो डेवलपमेंट है, इनकी जो प्रेजेंस है, वो जीन सी डिटरमिन करती है। ठीक है। Each gene has two forms: dark skin allele represented by the capital letters and light skin by the small letters. ये दोबारा से वही रिपीट हुआ है। ठीक है। और आपने इसके जो पॉसिबिलिटीज हैं वो तकरीबन आपके पास 64 पॉसिबिलिटीज बनेंगी, और आपके पास कॉम्बिनेशंस एलील की 8 बनेंगी। 8 एक तरफ, 8 दूसरी तरफ। तो आपने जब चेकर बोर्ड बना लेना है तो तकरीबन आपके पास 64 पॉसिबिलिटीज आएंगी। ठीक हो गया। अच्छा, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि वी हैव स्पर्म एंड एग, इट मींस दैट दिस इज द मेल पेरेंट एंड दिस इज द फीमेल पेरेंट। और जब इनका आपस में क्रॉस किया गया तो हमारे पास मुलेटो केस आया। और यहाँ पर अगर हम देखें तो 64 पॉसिबिलिटीज बन रही हैं। 64 पॉसिबिलिटीज में से आपके पास ओनली वन पॉसिबिलिटी ये है कि बिल्कुल फेयर कलर हो, और सबसे लास्ट में डार्केस्ट पॉसिबिलिटी भी एक ही है, और बीच में क्या है? वेरिएशंस हैं। लाइट रेड, लाइट ब्राउन, ब्राउन, फिर थोड़ा सा डार्क ब्राउन, फिर डार्केस्ट की तरफ शेड चला जाता है। ठीक है। तो अगर आप इन सर्कल्स में देखें तो अगर एक सर्कल भी फिल नहीं है तो इसका मतलब है कि आपके पास सारे के सारे जो हैं वो स्मॉल ए, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल बी, स्मॉल सी हैं। ठीक है। लेकिन अगर बीच में एक भी कलर आ गया था तो इसका मतलब ये है कि एक डोमिनेंट एलील बीच में आ गई है और कलर थोड़ा सा लाइट से डार्क की तरफ जा रहा है। ठीक है। तो आई होप कि आपको क्लियर होगा। इट इज वेरी इजी। इफ स्टिल देयर इज अ काइंड ऑफ अ क्वेश्चन यू कैन आस्क फ्रॉम मी, दैट इज वेरी इजी। इंशाल्लाह वी विल टेक स्टार्ट of next topic on Monday, that is sex determination and pattern of sex determination in case of Drosophila fly. Okay, inshallah we will start that on Monday, and most probably inshallah we will complete this chapter in the coming week, and then we will do the chromosome and DNA, and inshallah then we will do the evolution, and hopefully we will complete all the course at the end of Feb, inshallah. Wish you best of luck. Allah Hafiz.